Hello and welcome to everyone present here. Children, today we will begin the very first lesson of civics, and the name of the chapter is Understanding Diversity. विविधता की समझ. Children, today we will try to know how India is considered to be a country of diversity and how there is unity in diversity. So our main theme of this chapter is that we have to understand how India is considered to be a country of having population of different religion, community, culture, and even then having so many diversity in the country, there is unity among the people of Indians. So this will be the our hallmark of this चैप्टर. हमें इस चैप्टर का सबसे मुख्य बात यही है. सो विविधता की समझ चैप्टर शुरू करने से पहले हमें यह समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी. सो लेट अस बिगिन. Now, three children of your age have drawn the figure above. You might be seeing there are three pictures of human figure, and the students were told by the teacher to draw any three human figure by three children. They were not told to make copy of any figure. तो तीन बच्चों को कहा गया कि आप कोई भी ह्यूमन फिगर बनाइए तीन बच्चों से. And you were also told by the teacher that you also make a human figure in your copy. Is your drawing similar to any of the others? जब आप फिगर बनाते हैं, एक ह्यूमन फिगर, एक आदमी की तस्वीर बनाते हैं, तो क्या आप ये तीनों दी हुई तस्वीर से आपकी फिगर मैच कर रही है? The chances are that your drawing is quite different from the other three, which you can see are quite different from each other. तो जो तीन बच्चों ने भी फिगर बनाया है, उन सबका अलग अलग है फिगर, कोई मैचिंग नहीं है, और आप भी जो बनाए हैं फिगर वो भी इन तीनों से अलग अलग है. आपने सोचा कि क्यों अलग है? क्योंकि हम लोगों का अपना ड्राइंग बनाने का स्टाइल अलग अलग है, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग बनाया. नाउ देयर इज अदर एक्टिविटी. हियर यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद अ टास्क टू फिल अप दिस क्वेश्चंस. फर्स्ट, व्हेन आई गो आउट आई लाइक वियरिंग. इसका आंसर देना है एट होम आई स्पीक इन. माई फेवरेट स्पोर्ट इज आई लाइक रीडिंग बुक्स अबाउट. Now ask your teacher to help you check. So whenever the question is put before you, when I go out, I like wearing. Many children may be writing that I like wearing jeans. Somebody may like I like wearing trousers. Somebody may like I like wearing salwar suit. So different children will write differently. Whenever they are asked the question, what do you they like wearing when they go outside the home? The next question another is also at home I speak in. आप घर में किस भाषा में बोलते हैं, तो इसका भी लोग आंसर देते हैं. If your school is Kendriya Vidyalaya is situated in a very big city like Delhi, and the children of different states are also reading there, that possibility is that they may writing, if there is a student of Tamil Nadu, there is Andhra Pradesh, they may be writing I speak in Tamil at home, I speak in Telugu at home, and if you are from Bihar, you will be writing that I speak in Hindi in home, at home. My favorite sport is, this is third question, and most probably most of the students will write differently. Somebody will write my favorite sport is kabaddi. Somebody may write my favorite sport is cricket. Somebody may like my favorite sport is football. And whenever the fourth question is asked, what do you like reading books about? आप किस तरह का बुक पसंद करना पढ़ना पसंद करते हैं जब आपके पास खाली समय होता है? When you have a leisure, which types of book you like to read? You may be like I like reading story books. Somebody may write I like reading sports books. Somebody may write I like reading cartoon books. So different students may write different answers. Now the teacher is going to check all the answers. Is there anyone whose list matches with yours exactly? अब आपका आंसर क्या किसी अन्य बच्चे के साथ मिलता है? प्रोबेबली नॉट. हो सकता है चारों में से एक दो आंसर मिल जाए और सभी के सभी आंसर एक समान नहीं हो. बट मेनी ऑफ यू मे हैव सिमिलर आंसर. लेकिन हो सकता है क्लास में बहुत सारे बच्चों का आंसर सिमिलर भी हो. हाउ मेनी लाइक रीडिंग द सेम काइंड्स ऑफ बुक्स? कितने ऐसे बच्चे हैं जो एक ही तरह के बुक पढ़ना पसंद करते हैं? हाउ मेनी डिफरेंट लैंग्वेज आर स्पोकन बाय द स्टूडेंट्स योर क्लास? आपके क्लास में कितने अलग अलग तरह के लैंग्वेज बोलने वाले स्टूडेंट्स हैं? यहाँ तो अब अगर आरा के केंद्रीय विद्यालय में तो इस तरह की बात नहीं है, बट इफ यू आर रीडिंग इन different school, it may have different speaking language student maybe in your class. So after finishing these tasks,
But now you must have recognized the many ways in which you are quite like some of your classmates and other ways in which you are different from them. So after completing two tasks, first you were provided with making drawings, and second was writing the answer of 4 questions. What did you come to the conclusion? आप इन दोनों टास्क को पूरा करने के बाद किस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि हम कुछ मायने में अपने दोस्तों से या अपने दूसरे क्लासमेट से मैचिंग कर सकते हैं और कुछ मामलों में हम डिफर कर सकते हैं. ओके, नाउ हियर यू सी द 4 चिल्ड्रेन and all the children are having different faces, different clothes. They are looking different from each other, and here you see 2 children's faces are different. The answer is also no. Are the 2 children having same face? No, they are different. So what is the meaning of diversity? Diversity means varieties, being different. कोई भी चीज अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें अगर कोई भी चीज जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें विविधता होती है, तो उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं. मान लीजिए आप गार्डन में चले गए और वहाँ डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर है, तो क्या कहेंगे? वैरायटीज ऑफ फ्लावर्स है. मान लीजिए आप किसी ऑर्चार्ड बगीचे में चले गए, वहाँ डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स के पेड़ हैं, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ वैरायटीज ऑफ फ्रूट्स है. मान लीजिए किसी पार्टी में आप चले गए और वहाँ डिश मिला खाने के लिए, तो उसमें अलग अलग डिश मिले, पूड़ी भी है उसमें, आपका पुलाव भी है उसमें, आपका मतलब चाट भी है उसमें, आपका उसमें मतलब स्वीट्स भी है, तो आप कहेंगे वैरायटीज ऑफ डिशेस मैंने खाया. तो ये जो वैरायटीज है किसी भी चीज में हो सकती है, किसी भी मतलब जगह उपलब्ध हो सकती है हमारे आसपास. तो किसी भी चीज में जो अलग अलग माने वैरायटीज उपलब्ध है, उसी को डाइवर्सिटी कहते हैं. वो कोई भी चीज हो सकता है. तो डाइवर्सिटी मींस डिफरेंसेस और वैरायटीज इन समथिंग इन आवर सराउंडिंग. तो हमारे आसपास कोई भी चीज है, जब उसमें वो अलग अलग प्रकार की होती है, उसमें विविधता होती है, तो उसी को हम डाइवर्सिटीज कहते हैं. द डाइवर्सिटी में एग्जिस्ट. ये विविधता कहाँ कहाँ हो सकती है? वो फूड में हो सकती है, प्लांट्स जो हमारे तरफ है उसमें हो सकती है, फ्लावर्स जो हमारे चारों तरफ है उसमें हो सकती है, क्लॉथेस जो हम पहनते हैं उसमें हो सकती है, हाउसेस जो हमारे वो है उसमें हो सकती है, हम आसपास और सड़क पर चल जाए लोगों को देख सकते हैं, तो वो भी अलग अलग हो सकते हैं, एंड सो ऑन, काउंटलेस थिंग. तो डाइवर्सिटी, विविधता का मतलब होता है एग्जिस्टिंग्स ऑफ डिफरेंसेस इन एनीथिंग, दैट इज नोन एज डाइवर्सिटी. अगर किसी भी चीज में अलग अलग प्रकार मिलता है, तो उसे ही डाइवर्सिटी कहते हैं. The people around you not only look different, but they might also belong to different regional culture and religion. तो अगर हम आसपास के लोगों को देखें और केवल चेहरा देखें, तो चेहरा तो अलग अलग मालूम पड़ता ही है, लेकिन हो सकता है कि वो अलग क्षेत्र के हो, या अलग संस्कृति के हो, या अलग भाषा के हो, या अलग धर्म के भी हो. इतना ही अंतर नहीं है कि चेहरा अलग है, उनका कपड़ा अलग है, वो अलग अलग भाषा बोलने वाले भी हो सकते हैं, अलग धर्म मानने वाले भी हो सकते हैं, अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के हो सकते हैं वो शहरी हो, तो हो सकते हैं विलेज के देहाती हो. These differences enrich our lives in many ways. क्या आप सोचते हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं, इससे हमें प्रॉब्लम्स होते हैं, या इससे हमें लाइफ में एक वैराइटीज चीज देखने को मिलती है? अगर आप पार्टी में ही जाते हैं, तो अगर वैराइटीज ऑफ डिशेस खाकर आते हैं, तो आप खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? तो वैराइटीज होना ये हमारे लिए बोन है, वरदान है, हमारे लिए एक अच्छी बात है. मोनोटोनस नहीं होता है, उसमें एक ही एकाकीपन नहीं रहता है. लोग कहते हैं ना कि वैराइटीज आज हमने मतलब डिशेस खाए, या वैराइटीज तरह के फ्लावर देखे. All these different people who come from all kinds of backgrounds and belong to all kinds of religious and cultural help to make India so interesting and so diverse. अगर हम अपनी कंट्री इंडिया का एग्जाम्पल ले, तो हमारा इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, और ये हमारे कंट्री को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाते हैं. What does diversity add to our lives? ये डाइवर्सिटी जो हमारे कंट्री में लोगों में पाया जाता है, चाहे वो उनका कल्चर हो, चाहे उनका लैंग्वेज हो, चाहे उनका फेस्टिवल हो, चाहे उनका फूड हो, चाहे उनका क्लॉथ्स हो, ये डाइवर्सिटी जो एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में, क्या वो हमारे जीवन में कुछ नयापन भरती है? क्या हमको उससे कुछ फायदे मिलते हैं या नुकसान होता है? We will try to know it. How did India become like this? इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी क्यों पाई जाती है? We will also try to know this.
ऑल और काइंड ऑफ डिफरेंसेस ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी। क्या हम अलग अलग चीज देखते हैं एक दूसरे से कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से बहुत माने में अलग हैं, उनका लैंग्वेज अलग है, उनका कल्चर अलग है, तो क्या सबको डाइवर्सिटी कहेंगे? अगर अलग अलग कोई चीज, कोई धनी है कोई गरीब है, तो उसको भी क्या डाइवर्सिटी कहेंगे? कोई गाड़ी में चलता है और कोई साइकिल पैदल चलता है, तो क्या उसको भी डाइवर्सिटी कहेंगे? हमें इसे भी समझना है। कैन डाइवर्सिटी आल्सो प्ले अ पार्ट ऑफ यूनिटी? क्या ये डाइवर्सिटी होने से क्या यूनिटी संभव है? क्या एकता हो सकती है डाइवर्सिटी होने से? क्योंकि कंट्री को स्ट्रांग होना होता है, मजबूत होना होता है। अगर किसी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी रहेगी तो क्या कंट्री वीक हो जाएगा? We will try to know it. We will try to seek answer of all these questions after reading this chapter. तो इन सारे क्वेश्चंस का हम हल ढूंढने का प्रयास करेंगे। We not only don't look exactly like each other, but also differ from each other in various ways, like language we speak, our cultural background, the religious rituals we observe. तो वी नॉट ओनली डोंट लुक एग्जैक्टली लाइक ईच अदर, तो कहने का मतलब कि हम लोग केवल एक दूसरे के देखने में ही अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते हैं कि हमारा और उनका चेहरा अलग है। भारतीयों में अलग अलग चेहरे के लोग रहते हैं, बल्कि भाषा में भी डिफरेंस हो सकता है, कल्चर में भी, संस्कृति में भी, रहने का ढंग में भी अंतर हो सकता है, धर्म में भी अंतर हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठान में भी, पूजा पाठ करने के तरीके में भी अंतर हो सकता है। The varieties of religion, language and culture is known as diversity. तो हमारे भारत में जो डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज और कल्चर के लोग रहते हैं, वही हमारे कंट्री को एक डाइवर्स कंट्री बनाती है, और उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ समवन हु इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस? अब क्या अगर कोई हमसे बहुत अलग डिफरेंट रिलीजन या डिफरेंट कल्चर का आदमी है, तो क्या उससे हमारी फ्रेंडशिप हो सकती है? क्या फ्रेंडशिप होने के लिए हमको उससे सेम ही होना पड़ेगा हर माने में, या डिफरेंट कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन का होते हुए भी वो हमारा फ्रेंडशिप हो सकता है? इस बात का हम पता लगाते हैं। हियर इज ए स्टोरी अबाउट टू फ्रेंड्स हु कम फ्रॉम वेरी डिफरेंट कल्चरल इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। यहाँ पर दो दोस्तों की हम कहानी पढ़ते हैं, और दोनों का संस्कृति और आर्थिक स्थिति अलग अलग है, और वो कैसे फ्रेंड बन जाते हैं हम देखते हैं। ही इज समीर एक, ये साइकिल पर जो बच्चा बैठा है ये समीर एक है। ही इज ए हिंदू, यह हिंदू है। ही गोज टू स्कूल, यह डेली स्कूल पढ़ने जाता है। ही इज मोर फैमिलियर टू इंग्लिश, वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ता है और इंग्लिश भी जानता है। ही इज समीर दो, ये जो लड़का है हाथों में अखबार लिए हुए, ये समीर दो है। ही इज ए मुस्लिम, ये मुस्लिम है। ही सेल्स न्यूज़पेपर टू अर्न लिविंग, ये अपने जीविका चलाने के लिए इतना गरीब है कि वो न्यूज़पेपर बेचकर अपना खर्च निकालता है घर का, और स्कूल नहीं जाता है। ही स्पीक्स हिंदी, ये हिंदी बोलता है। एंड कम्स फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली बैकग्राउंड, गरीब घर से आता है, और इसे इंग्लिश भी नहीं आती। तो हम क्या देखते हैं? समीर एक है, वो हिंदू है, स्कूल जाता है, इंग्लिश जानता है, रिच फैमिली से है। समीर दो है, मुस्लिम है, वो गरीब है, वो न्यूज़पेपर बेचकर खर्च चलाता है और स्कूल भी नहीं जाता और इंग्लिश भी नहीं जानता है। वन Samir used to cycle for walk and the other one used to run behind the cycle for selling people न्यूज़पेपर। तो ये क्या है कि दिल्ली में, मतलब ये समीर वन जो है वो हमेशा अपने साइकिल से जाता है, और ट्रैफिक में रेड लाइट होती है तो रुक जाता है, और समीर दो उसके पीछे पीछे जो गरीब है न्यूज़पेपर बेचने के लिए आता है। दे यूज्ड टू मीट रेगुलरली एट जनपथ क्रॉसिंग एंड ग्रेजुअली ईच अदर एंड बिकेम फ्रेंड्स। तो ये प्रतिदिन एक दूसरे से मिलते हैं। समीर एक के पास जाता है, उससे अखबार खरीदने के लिए कहता है, अखबार बेचता है, और धीरे धीरे ये इनमें दोस्ती बढ़ जाती है। So name three ways in which Samir एक and Samir दो were different. Did these differences prevent them from becoming friends? तो अब हमें ये पता लगाना है कि समीर एक और समीर दो किन तीन मानों में अलग थे, और क्या अलग अलग रहते हुए उनमें दोस्ती हुई या नहीं हुई। दोस्ती तो हो गई। समीर एक जो है नोज इंग्लिश, बट समीर दो स्पीक इंग्लिश। समीर एक जो है वो इंग्लिश बोलता है, और जो समीर दो है वो हिंदी बोलता है। ये फाला डिफरेंस हुआ। समीर एक इज हिंदू बट समीर दो इज मुस्लिम। समीर एक जो है वो हिंदू है, बट समीर दो इज मुस्लिम है। देखिए दोनों का नाम सेम है, समीर। समीर एक इज नॉट पुअर एंड हैव अपॉर्चुनिटी टू गो स्कूल, बट समीर दो इज पुअर एंड डज नॉट गोस टू। समीर एक जो है वो गरीब नहीं है और स्कूल जाता है, लेकिन समीर दो है वो स्कूल नहीं जा सकता है।
क्योंकि उसे जब तक वो अखबार को न्यूज़पेपर नहीं बचेगा, उसे घर का खर्च ही नहीं जुट पाएगा। तो जिसको घर के खर्च ही जुटाने में इतनी मुश्किल है, वो तो स्कूल कहाँ से जा सकता है। हियर वी सी दैट समीर ए एंड समीर डू आर डिफरेंट फ्रॉम their cultural and religious background and this is the part of diversity। तो यहाँ हम देखते हैं समीर एक और समीर दो बहुत माने में एक दूसरे से अलग हैं, और एक हिंदू है तो एक मुस्लिम है, एक हिंदी बोलता है तो एक मतलब इंग्लिश भी जानता है। तो ये इनकी कल्चरल और रिलीजियस डाइवर्सिटी को बतलाता है। एक पुअर है और एक स्कूल जाने की सुविधा एक थोड़ा अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है समीर एक, और इसको स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी है, और एक समीर दो जो है पुअर है और स्कूल नहीं जा पाता है। क्या ये भी डाइवर्सिटी है? Hence we see that different culture, religious, economic backgrounds are no bar for breaker। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आपका कल्चर, रिलीजन और इकोनॉमिक डिफरेंसेस है, तो ये आपको दोस्ती बनने में बाधक नहीं हो सकती। इसी तरह से इंडिया में लोग डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, फिर भी सभी लोग में यूनिटी है, ऑल आर इंडियंस। ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस होने से वो देश कमजोर हो जाएगा, डिफरेंसेस होने से भी उनके बीच में आपका मतलब एकता है, दोस्ती है। इनइक्वलिटीज, असमानता। अभी तो हम लोग डाइवर्सिटी पढ़े, अब असमानता क्या है? समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड स्कूल। हमने देखा, वी हैव जस्ट सीन समीर एक हैज अपॉर्चुनिटी टू गो स्कूल, बट समीर दो डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू गो स्कूल बिकॉज ही इज पुअर, ही हैज टू सेल द न्यूज़पेपर डेली। तो समीर दो को डेली न्यूज़पेपर बेचना पड़ता है और वो स्कूल नहीं जा सकता है। परहैप्स यू हैव नोटिस दैट देयर आर सेवरल पीपल इन एरिया वेयर यू लिव हु आर पुअर एंड हु डोंट हैव एनफ टू ईट एंड वियर एंड समथिंग नॉट इवन टू प्लेस टू लिव। आपने भी अपने रहने वाले आसपास जगह में देखा होगा या गांव में देखा होगा कि कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके मम्मी पापा मतलब छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे दुकान चलाते हैं और उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। वो घर पर ही रहते हैं या मम्मी पापा का हाथ बटाते हैं दुकानों पर, या फिर इतने गरीब होते हैं कि उनको स्कूल जाना नसीब नहीं होता है। खाना पीना का जुगाड़ करने में उनके माता पिता परेशान रहते हैं। दिस डिफरेंसेस इज नॉट सेम एज वन वी हैव सीन। तो अर्लियर, तो कहने का मतलब कल्चर का, लैंग्वेज का डिफरेंसेस होना एक अलग बात है, लेकिन अमीर और गरीब होना और उसके चलते स्कूल नहीं जाना, ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये इनइक्वलिटी है। हियर वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वलिटी। असमानता है। असमानता किसे कहते हैं? इनइक्वलिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। तो असमानता हमें यह बताती है कि अगर एक व्यक्ति के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं और बहुत सारा मतलब उसके पास अवसर उपलब्ध हैं स्कूल जाने का, घूमने का या अच्छे तरह से जीवन जीने का, और एक आदमी गरीब है और उसके पास बहुत सारे अवसर नहीं है, अच्छे ढंग से जीने के उसके पास अवसर नहीं है, कपड़े पहनने का, भोजन खाने का, स्कूल जाने का, हॉस्पिटल अच्छे में मतलब ट्रीटमेंट लेने का, तो ये डाइवर्सिटी नहीं है। यहाँ डिफरेंसेस है, लेकिन ये वो समीर दो क्यों नहीं स्कूल जा पाता है? क्योंकि वो गरीब है। अगर वो अखबार नहीं बेचेगा तो फिर वो खा ही नहीं पाएगा खाना, उसको भोजन ही नहीं मिलेगा। तब जब तक भोजन नहीं मिलेगा तो फिर स्कूल जाने की बात तो उसके बाद आती है। पहले तो भोजन, कपड़ा और आवास, ये तीन मूलभूत आवश्यकता है। तो भोजन, कपड़ा, आवास तो बेसिक नीड्स ही उसको नहीं मिल रहे हैं, और उसको करने के लिए वो बेचारा न्यूज़पेपर बेचता है। तो ये तो समीर एक और समीर दो में डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस डाइवर्सिटी नहीं है, ये डिफरेंस उनके अपॉर्चुनिटी में है। क्योंकि ये एक गरीब है, एक अमीर है, और ये इनइक्वलिटी को बताता है कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है, उतना संसाधन नहीं है, रिसोर्स नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो नहीं जा पाता। वो खुशीपूर्वक नहीं स्कूल जाता है, उसके पास रिसोर्स नहीं है, साधन नहीं है। तो इनइक्वलिटीज का मतलब होता है कि किसी भी के व्यक्ति के जीवन में इनइक्वलिटी कब आती है? जब उसके पास रिसोर्स और उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं हो अच्छा जीवन जीने के लिए। कैन कास्ट सिस्टम एंड इनइक्वलिटीज। हमारे देश में कुछ इनइक्वलिटीज हजारों साल से हैं। इसमें हमारे देश में बहुत दिनों से कुछ इनइक्वलिटी समाज में, सोसाइटी में है। वो कैसे है? एक कास्ट सिस्टम भी उसका फैक्टर है। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जांपल ऑफ इनइक्वलिटी।
According to this, society was divided into different groups depending on the work that people did and they were supposed to remain in those groups. तो हमारा जब वैदिक पीरियड था, जब वेदों की रचना हुई थी, तो उस समय लोगों को कास्ट बना था कि लोग अलग अलग काम करते हैं। तो जो बढ़ई का काम करता है वो बढ़ई कहलाएगा, जो लोहार का काम करता है लोहार कराएगा, जो कुम्हार का काम करता है कुम्हार कराएगा। मतलब ये अलग अलग ग्रुप्स बने थे, कास्ट बने थे काम के आधार पर। But in due course of time, it became rigid and it started to depend on the birth. So if your parents were potters, you could only become a potter, nothing else. लेकिन बाद में अगर आप जन्म के आधार पर कास्ट होने लगा कि अगर आप पॉटर के घर जन्म ले लिए तो आप पॉटर ही कहलाइएगा और केवल पॉटर का ही काम सीखिएगा। अगर आप लोहार के घर जन्म ले लिए तो आप केवल लोहार का ही काम सीखिएगा। ये लेटर वैदिक पीरियड में हुआ, जब मतलब अर्लियर वैदिक पीरियड में नहीं। दिस सिस्टम वॉज कंसिडरेबल इरिसिबल। तो आपका जिस कास्ट में आपका जन्म हो जाता था, आप अपना वही माता पिता के जो पुष्नैती धंधे होते थे, जो माता पिता काम करते थे, वही आप सीखते थे। आप कोई नया चीज नहीं सीखते थे, नया चीज सीखने का आपको मौका नहीं मिलता था। तो आपके अंदर टैलेंट भी हो, आपके अंदर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी आपको। तो अब ये पीढ़ी दर इसी तरह से होते आया। अब बढ़ई का बेटा बढ़ई बनते गया, लोहार का बेटा लोहार बनता गया। तो ये मतलब अब इनइक्वालिटी समाज में आ गई, कुछ लोग गरीब ही रह गए। सो एंड बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, अगर आप पढ़ाई के घर जन्म लिए तो आप दूसरा काम नहीं कर सकते। इट वॉज नॉट कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। अगर आप पढ़ाई के घर जन्म ले लिए तो आपको पढ़ाईगिरी ही सीखनी है, अब दूसरा कोई आप काम सीख नहीं सकते हैं। इस तरह का सिस्टम बन गया था। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। इसके चलते भी हमारे देश में इनइक्वालिटी, असमानता आ गई। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जिस कम्युनिटी में कास्ट में जन्म लेते थे वो केवल वही प्रोफेशन सीखते थे, केवल वही धंधा सीखते थे, दूसरा चीज उनको सीखने का अवसर नहीं मिलता था, आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन शुरू में ये बात नहीं थी। शुरू में काम के आधार पर कास्ट बटा हुआ था कि ये काम करते हैं इसलिए इनको बढ़ई कहलाएगा, ये काम करते हैं इसलिए इनको लोहार कहलाएगा, ये सोना का काम करते हैं इनको सोनार कहलाएंगे, गोल्ड स्मिथ कहलाएंगे, ये लोहा का काम करते हैं ये मतलब आपका ब्लैक स्मिथ कहलाएंगे, लोहार कहलाएंगे। बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम it was based on birth, and the person taking birth in a particular caste was supposed to be doing the same job of his parents, and he was not provided with opportunity to learn other profession. So his talent and his opportunity to make a progress was totally hindered and hampered. तो उसे कोई दूसरा काम सीखने का या दूसरा चीज प्रोफेशन अपनाने का अवसर नहीं मिलता था, वो उसी तक ही सीमित हो जाता था। तो कास्ट सिस्टम से भी इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है नॉट हैविंग अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्सेज टू लिव अ हेल्दी लाइफ एंड गुड लाइफ। अच्छा जीवन जीने के लिए जब आपके पास साधन उपलब्ध नहीं हो, अवसर उपलब्ध नहीं हो, तो वही असमानता है, वो डाइवर्सिटी नहीं है। व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू योर लाइफ? हमारे जीवन में डाइवर्सिटी से क्या फायदे होते हैं? क्या कुछ फायदा होता है? देखते हैं। We eat different types of foods. We get opportunity to have different types of food. Bengali foods, South Indian foods, Punjabi foods, Maharashtra, Bada Pav. Suppose your parent is transferred and posting in Punjab. There are more large number of Punjabi people be living there. So you will have the opportunity to have the Punjabi food. अगर आपके पिताजी का ट्रांसफर पंजाब में हुआ तो आपको पंजाबी फूड, पंजाबी फेस्टिवल, पंजाबी क्लॉथ्स देखने, खाने और पहनने का अवसर मिलेगा। अगर बंगाल में पोस्टिंग है तो आपको बंगाल का फूड, बंगाली कल्चर को जानने का अवसर मिलेगा। तो अगर हमारे आसपास डाइवर्सिटी है तो हमको तो अवसर मिलते हैं, मौका मिलता है डिफरेंट फूड्स खाने का। साउथ इंडिया में तो साउथ इंडियन मिलेगा। वी एंजॉय एंड सेलिब्रेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस्टिवल्स विद आवर फ्रेंड्स। अगर हमारे आसपास या हमारे देश में डाइवर्सिटी है तो हमें अलग अलग फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। लोग दावत देते हैं, बुलाते हैं पार्टी में, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे क्रिसमस हो। तो ये तो हमें एक अपने ही धर्म और अपने ही फेस्टिवल तक नहीं सीमित, हमको अवसर मिलता है एंजॉय करने का, दूसरे लोगों के साथ भी फेस्टिवल बनाने का, घूमने का। बैसाखी फेस्टिवल पंजाब में होता है। सो इफ देयर इज डाइवर्सिटी वी गेट अपॉर्चुनिटी
to eat different types of food, to celebrate different types of festivals, to wear different types of clothes, and to learn different types of languages. So diversity enrich our life. अगर डाइवर्स पीपुल के बीच में रहते हैं तो हमारे जीवन में भी इनरिचमेंट आता है, हम कुछ नया सीखते हैं, नया खाने का, नया पहनने का, नया तरह के त्यौहार मनाने का हमें अवसर मिलता है। अगर हम केवल एक ही कम्युनिटी के अंदर में रहते, अगर हमारे आसपास डाइवर्स पीपुल नहीं रहते, तो फिर केवल हम अपने ही धर्म, अपने ही भाषा और अपने ही कल्चर में सिमट कर रह जाते। लेकिन हमारा तो इंडिया ऐसा है कि इसमें डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स कम्युनिटी, डाइवर्स लैंग्वेज को मिलता है और हमें वो सारे चीज़ों को खाने, पहनने और एंजॉय करने का मौका मिलता है। तो डाइवर्सिटी इनरिच आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे है? वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। कहीं हिंदी है तो कहीं गुजराती है तो कहीं मराठी है, आप देख सकते हैं। कहीं तमिल है, तमिलनाडु में तमिल है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु है, बंगाल में बंगाली है, हिंदी है, उर्दू है, गुजराती है। तो ये लिस्ट बहुत सारे हैं। इंडिया में बहुत डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं। डिफरेंट काइंड्स के क्लॉथ्स भी पहनते हैं। कोई पंजाबी ड्रेस पहनता है, गुजरात में गुजराती ड्रेस पहनते हैं, बंगाल में बंगाली ड्रेस पहनते हैं। देखिए, कहीं साड़ी लोग पहनते हैं, कहीं लहंगा पहनते हैं, कहीं मेखला चादर पहनते हैं, कहीं सलवार कुर्ता पहनते हैं, डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं। हमारे देश में डिफरेंट रिलीजन्स के रखते हैं। हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिख है, बुद्धिज्म है, इसी तरह से है, जैनिज्म है। अलग अलग धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। सो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी बिकॉज हियर पीपुल ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट फूड हैबिट्स, डिफरेंट फेस्टिवल्स, कल्चर्स लिव. So India is a country of diversity. But even being diverse culture, language, and differences among ourselves, there is unity. हमारे देश में एकता है. India's diversity has always been recognized as a source of strength. ये diversity हमारे लिए एक शक्ति है. When British ruled India, women and men from different cultural, religious, and regional background came together to oppose them. आपको मालूम होगा हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन चलता था. अंग्रेजों के विरुद्ध हम लोगों ने लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए, और जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी तो उसमें सभी भारतीय, सभी पुरुष, महिला, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग कल्चर के एक साथ मिलकर लड़ाई लड़े थे. India's freedom movement had thousands of people of different background in it. तो हमारे देश में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में, so the all Indians were fighting unitedly against their sole enemy Britishers. तो अपने एकमात्र शत्रु ब्रिटिश के विरुद्ध सभी भारतीय एकजुट कर लड़ रहे थे. अगर उनमें एकता थी तभी तो एक साथ मिलकर लड़ रहे थे. अगर उनमें डाइवर्सिटी होते हुए अगर यूनिटी नहीं होती तो सब लोग एक साथ मिलकर नहीं लड़ते, तब तो अंग्रेज यहां से जाते ही नहीं. बट ऑल इंडिया फाउट यूनाइटेडली अगेंस्ट द Britishers during freedom struggle. The people of India showed how they could be different and yet be united in their battle against the British. भारतीय लोगों ने अपनी आज़ादी की लड़ाई में दिखा दिया कि यद्यपि वे अलग अलग भाषा, धर्म, जाति और कल्चर के हैं, लेकिन सभी यूनाइटेड हैं. ब्रिटिश लोगों ने इस बात को समझ लिया कि ऑल इंडियंस आर यूनाइटेड, नहीं तो फिर वो यहाँ पर फुट डालो और राज करो और कभी जा ही नहीं पाते. इन हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, Nehru says that Indian unity is not something imposed from outside, but rather it was something deeper and within its fold. The first Prime Minister of India, independent India, Jawaharlal Nehru, had written a book, Discovery of India, and he wrote in that book that the unity in India is not imposed from outside, but it is from its deeper and within its fold. भारत में जो एकता है, डाइवर्सिटी के बावजूद जो एकता है, वो बाहर से इस पर यूनिटी लोगों को सिखाया नहीं गया है कि हमें यूनाइटेड रहना है, बल्कि यहाँ के लोगों में यूनाइटेड होने की भावना अपने आप अंदर से आ गई है. ऑल आर इंडियंस आज़ादी के लड़ाई के समय से ही आ गई है लोगों में कि हम ऑल आर इंडियंस. ये लोगों को सिखाया नहीं गया कि हम लोग एक हैं, एक साथ रहें. उन्होंने एक किताब लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, और
उन्होंने इस किताब में लिखा कि यूनिटी इन इंडिया इज नॉट इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड बट इट इज फ्रॉम विद इन इट्स फोल्ड। भारत में जो एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो बाहर से नहीं मतलब यहाँ पर लादा गया है, बल्कि ये अपने आप यहाँ पैदा हुई है। नेहरू कॉइन्ड द फ्रेज यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू डिस्क्राइब भारत को कैसा देश है, इस बात को कहने के लिए नेहरू जी कहते थे देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखी। ये देखिए द पंडित नेहरू डिलीवरिंग द इंडिपेंडेंस डे स्पीच, ये अपना भाषण दे रहे हैं लाल किला से, अपना 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का। नेहरू जी यहाँ खड़े हैं, आप देखिए, बहुत पुरानी पिक्चर है, ब्लैक एंड व्हाइट में। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity. तो जब आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो उसमें अलग अलग सॉन्ग्स और अलग अलग सिंबल्स बने थे। तिरंगा झंडा आया था, भारत माता की तस्वीर आई थी, गीत रचे गए थे, मतलब बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था, और फिर राष्ट्रगान का भी निर्माण हुआ, जन गण मन का। तो ये सब सॉन्ग्स और जो सिंबल थे, ये हमारे भारत के डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट देते थे। इंडियाज नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय रवींद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब, सिंध, गुजरात, सभी स्टेट्स का नाम आ रहा है इसमें। तो ये जो अपना आपका नेशनल एंथम है, ये भी एकता का परिचायक है कि हम लोगों में मतलब यूनाइटेड थे। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? भारत में इतनी मतलब डाइवर्सिटी आई कैसे, इसे भी हमें समझना होगा। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there. Thus, a region became very diverse because of their unique history. तो हिस्ट्री के चलते भी बहुत जगह में डाइवर्सिटी इंडिया में है। हिस्ट्री के चलते, इतिहास के चलते लोगों का लाइफ इन्फ्लुएंस हुआ, अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ आकर बसते गए और फिर एक दूसरे के लैंग्वेज और कल्चर और को अपनाते गए, तो डाइवर्सिटी आ गई। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to geographical area in which they live. किसी एरिया के हिस्ट्री के चलते वहाँ डाइवर्सिटी होती है, वहाँ का इतिहास क्या रहा है, वहाँ कौन से लोग रहते आ रहे हैं, फिर बाहर से लोग आकर वहाँ कौन से बसे, तो वहाँ का जैसा इतिहास रहा वहाँ वैसी डाइवर्सिटी डेवलप हो गई। उसी तरह से जहाँ का जोग्राफी जैसा रहा, पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, ज़्यादा वर्षा वाला इलाका है, कम वर्षा वाला इलाका है, तो उसके चलते भी वहाँ के लोगों का जीवन उस तरह से हो जाता है, तो वहाँ डाइवर्सिटी आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन अ माउंटेन। अब समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों का जीवन पर्वत के क्षेत्र में रहने वाले लोगों का जीवन से बिल्कुल अलग होगा। तो इंडिया में या जो डाइवर्सिटी आई है उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। किसी भी रीजन के में डाइवर्सिटी क्यों आ जाती है, इसमें हिस्टोरिकल फैक्टर और ज्योग्राफिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। हिस्टोरिकल है कि उस इलाके में पहले से कौन लोग लैंग्वेज के लोग रहते थे, पहले से कौन से धर्म के मानने वाले रहते थे, फिर बाद में वहाँ कौन से लोग आकर बस गए, फिर उन दोनों का मिक्सअप हो गया, तो फिर एक मतलब एक नया कल्चर डेवलप हुआ। तो हिस्ट्री से भी पता चलता है, और वो कैसा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, डेजर्ट इलाका है, नदी वाला इलाका है, तो वहाँ के लोगों का जीवन उस तरह से फिर डेवलप होता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन व्हेन वी से हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ रीजन। तो किसी भी रीजन में डाइवर्सिटी आती है ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स के चलते। वी कैन डू दिस बाय रीडिंग अबाउट लाइफ ऑफ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, केरला एंड लद्दाख। तो कैसे केरला और लद्दाख में डाइवर्सिटी आई है ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल फैक्टर से, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। लद्दाख इज ए डिजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक माउंटेनस रीजन है, मरुस्थली इलाका है, मतलब यहाँ पेड़ पौधे नहीं है, ठंडा मरुस्थल है। मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं, गर्म मरुस्थल जहाँ बालू मिलता है और कैक्टस के पेड़ मतलब बबूल के पेड़, कीकर के पेड़ मिलते हैं, ऊंट मिलता है, और एक होता है माउंटेनस रीजन में जहाँ ठंड काफ़ी पड़ती है, बर्फ होता है 9 महीने तक, तो वो कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। तो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट है और जम्मू कश्मीर में है। Very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain and is covered in snow for a large part of the year. तो साल के 9 महीने बर्फ से ही ढका रहता है, बारिश नहीं होती है, इसलिए यहाँ कृषि नहीं होती है। तो यहाँ के लोग कृषि क्यों नहीं करते हैं? ज्योग्राफिकल फैक्टर है भाई, यहाँ पर तो बर्फ ही ढका रहता है 9 महीना तक। There are very few trees that can grow in the region.
थोड़ा सा बसंत के मौसम में कुछ पेड़ जमते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपुल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। यहाँ पर पानी पीने की भी समस्या है, समर मंथ में जब बर्फ पिघलती है तो उसी से पानी पीते हैं हम लोग। तो यहाँ अपना पानी जमीन से निकालते हैं पीने के लिए, तो हमारे यहाँ पानी आसानी से मिल जाता है जमीन से, लद्दाख में नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जोग्राफी दूसरा है, वहाँ माउंटेनस रीजन है, कोल्ड डेजर्ट है, तो वहाँ डाइवर्सिटी और हमारे जीवन और लद्दाख के लोगों के जीवन में क्यों अंतर है? क्योंकि लद्दाख का जोग्राफी दूसरा है, हमारा इलाके का जोग्राफी दूसरा है। यहाँ के जमीन, यहाँ की क्लाइमेट दूसरी है, वहाँ के जमीन और क्लाइमेट दूसरा है। पीपुल हैव कीप सीप एंड गोट्स, वहाँ के लोग सीप और गोट पालते हैं। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्चिमा वूल, तो यहाँ के लोग जीने के लिए गोट्स, बकरी और भेड़ पालते हैं। यहाँ का भेड़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे जो ऊन मिलता है उसे पश्चिमा वूल कहते हैं। दिस वूल इज प्राइज्ड एंड पश्चिमा शॉल्स कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ का जो ऊन है उससे पश्चिमा जो शाल बनता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है। द पीपुल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स एंड सेल देम टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर। तो लद्दाख के लोग जो हैं ये अपने भेड़ जो पालते हैं उससे पश्चिमा वूल निकालते हैं और कश्मीर को लोगों को भेज देते हैं, और फिर कश्मीरी लोग पश्चिमा शॉल बनाते हैं जिस कश्मीर में मिलता है। तो ये देखते हैं कि लोग भेड़ बकरी पालते हैं और पश्चिमा ऊन निकालते हैं लद्दाख के लोग। द पीपुल ईट मीट एंड मिल्क प्रोड्यूस लाइक चीज़ एंड बटर। यहाँ लोग खाने में मीट का और फिर मिल्क से बने हुए मतलब चीज़ और बटर का यूज़ करते हैं। ईच फैमिली ओज सम गोट्स, हर परिवार के पास कुछ गोट्स होते हैं, काऊ होते हैं और याक होता है। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. अब डेजर्ट है तो इसका मतलब यहाँ नहीं कि व्यापार यहाँ कुछ नहीं होता है। It was considered a good trade route as it had many places through which caravans traveled to what is today called Tibet. लेकिन अब ये निर्जन इलाका जैसा था, लेकिन इसका मतलब कि इधर व्यापारी नहीं आते थे, ऐसी बात नहीं है। ये तिब्बत जाने के मार्ग पर ये आपका स्थित है। तिब्बत जो अब चाइना के कंट्रोल में है, चाइना में है, तो भारत से लोग जब तिब्बत जाते थे तो इसी लद्दाख से होके जाते थे। बुद्ध धर्म का प्रचार भी हुआ था और चाइना से भी बुद्ध धर्म के जानकारी के लिए लोग आए थे। फाहियान आया था, हुएनसांग आए थे, तो ये इसी रास्ते से आए थे। तो ये ट्रेड रूट पर था और यहाँ पर बड़े बड़े ऊंट के पीठों पर लादकर व्यापारी जाते थे, गधों पर लाद के जाते थे, उसे कारवां कहते थे। तो टेक्सटाइल और स्पाइसेज और रॉ सिल्क चाइन मतलब तिब्बत से आता जाता था इसी रास्ते से होकर लद्दाख के। बुद्धिज्म रीच्ड तिब्बत वाया लद्दाख, तिब्बत में बुद्ध धर्म पहुंचा लद्दाख के ही रास्ते से। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। Islam was introduced in this region more than 400 years ago and there is a significant Muslim population here. तो लद्दाख में केवल बुद्ध धर्म के मानने वाले ही लोग नहीं रहते हैं, बल्कि इस्लाम के लोग मानने वाले लोग भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, और मुस्लिम वहाँ 400 साल पहले बसे। तो ये हिस्ट्री से हमें पता चला कि वहाँ का इतिहास ऐसा है कि 400 साल पहले लद्दाख में मुस्लिम भी जाकर बस गए। लद्दाख हैज़ ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम। लद्दाख के लोग बहुत गीत गाते हैं और बहुत गाना गाते हैं, कविताएं पढ़ते हैं। लोकल वर्सन ऑफ तिब्बतियन नेशनल इपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिज्म। तो बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों अलग अलग रिलीजन एंड कल्चर के हैं। पहले से वहाँ बुद्धिस्ट लोग रहते थे, बाद में 400 साल पहले जाकर वहाँ मुस्लिम भी बस गए, लेकिन दोनों में भी बहुत एकता है। और तिब्बतन नेशनल इपिक, तिब्बत का मतलब एक बहुत बड़ी महाकाव्य है, गीत है केसर सागा, जो मुस्लिम और बुद्धिस्ट आज भी वहाँ एक साथ मिलकर गाते हैं। तो डाइवर्सिटी है लेकिन यूनिटी है, और ये डाइवर्सिटी वहाँ जोग्राफिकल और मतलब हिस्टोरिकल फैक्टर के चलते, जोग्राफिकल के चलते लोग भेड़ और बकरी पालते हैं और खेती नहीं संभव है और ट्रेड रूट पर स्थित है, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकल फैक्टर में मुस्लिम लोग वहाँ जाकर बसे और मुस्लिम कल्चर भी है और बुद्धिस्ट कल्चर भी है, और वहाँ का जो एपिक है महाकाव्य बुद्धिस्ट का केसर सागा, वो दोनों लोग मिलकर गाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं तिब्बत का जो अभी कल्चर है वो डाइवर्स हम लोगों से क्यों है, क्योंकि उसके लिए जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह से केरला, केरला ये स्टेट इन साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, इंडिया के साउथ वेस्ट पार्ट में केरला है। इट इज सराउंडेड बाय सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन अदर, एक साइड में ये समुद्र है, दूसरे साइड में पहाड़ियां हैं। ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पीपर, क्लोव्स एंड कार्डेमम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स। यहाँ केरला में पहाड़ियों पर
बहुत तरह के मसालों की, जैसे गोल मिर्च, लौंग और इलायची की खेती होती है। साउथ इंडिया में गर्म प्रदेश से इलायची की खेती होती है। इन इट इज स्पाइसेस दैट मेक्स दिस रीजन एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। तो साउथ इंडिया में, केरला में जो मसालों की खेती होती थी, गोल मिर्च या काली मिर्च, इलायची या लौंग की जो खेती होती थी, उसके चलते व्यापारी, यहाँ तक कि विदेश से भी, इंग्लैंड से भी व्यापारी इधर आते थे। Jews and Arabs trader were first to come here. सबसे पहले यहाँ पर जूस और अरब व्यापारी आए। The apostle of Christ, Saint Thomas, is believed to have come here nearly। अब यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के एक धर्म प्रचारक जो थे संत थॉमस, वो भी यहाँ पर आए लगभग 2000 साल पहले। तो जूस भी आए, जथरुष्ट को मानने वाले, यहाँ पर अरब भी आए, इस्लाम धर्म वाले, और ईसाई भी आए। एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। तो संत थॉमस जो आए 2000 साल पहले आए, और उन्हीं के चलते भारत में क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियन धर्म आया। तो केरला का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पता चलता है कि वहाँ पर क्रिश्चियन भी रहते हैं और जूस भी हैं और मुस्लिम भी हैं। मेनी अरब ट्रेडर्स आल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर। बहुत सारे अरब से व्यापारी आकर केरल में बस गए। इब्न बतूता, हु ट्रेवल्ड हियर ए लिटिल लेस देन 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a high respected community। तो आज से 700 साल पहले एक अरब व्यापारी इब्न बतूता यहाँ आया था, और उसने एक अपनी यात्रा वृत्तांत लिखा था और बताया था कि किस तरह से केरल में जो मुस्लिम रहते हैं वो उनका बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। तो हम देखते हैं कि केरल में मुस्लिम भी हैं, वहाँ पर क्रिश्चियन लोग भी आकर बसे। लोकल केरल के तो लोग इंडियन थे ही, जूस लोग भी आकर वहाँ बसे, और ये सबसे पहले मसाला के व्यापार के चलते आए। द Portuguese discovered the sea route to India from Europe when Vasco da Gama landed with his ship here। और यूरोप से समुद्री रास्ते से पहली बार पानी के जहाज पर बैठकर कोई यूरोप से पहली बार आया तो था वास्को डी गामा। 1498 में वो यहाँ पहुंचा था। तो यूरोपियन भी आए। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hinduism, Buddhism। तो हम हिस्ट्री जब केरला का पढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ कि अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के लोग आकर यहाँ बस गए। इसीलिए आज वहाँ जथरुष्ट धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मानने वाले, क्रिश्चियनिटी को मानने वाले, हिंदुइज्म धर्म को मानने वाले, बुद्धिज्म को मानने वाले सभी लोग वहाँ रहते हैं। तो वहाँ जो इतने डाइवर्सिटी आई है उसका कारण क्या रहा? हिस्टोरिकल, अलग अलग समय में लोग आकर वहाँ बसे। द फिश, आप कुछ और जीने के ढंग में भी है डाइवर्सिटी। वो क्या है? रिलीजन का तो समझ गए कि बहुत लोग आकर बसे, धर्म के लोग यहाँ। द फिशिंग नेट्स यूज हियर लुक लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चेना वाला। यहाँ पर जो मछली पकड़ने के लिए जो नेट है, जाल है, वो चाइनीज, चीन के लोगों के द्वारा जो जाल मछली पकड़ने के लिए यूज किया जाता है उसी के जैसा है, और उसका नाम है चेना वाला। मतलब चीन के संस्कृति का भी यहाँ प्रभाव है। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी, एंड इट इज बिलीव दैट द वर्ड चीन could have come from China। तो यहाँ पर जो मतलब भोजन को फ्राई करने के लिए, भुनने के लिए जो बर्तन यूज किया जाता है उसका नाम है चेना चट्टी, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये चीन से ही ये लिया गया है वर्ड। तो कहने का मतलब चाइना का भी यहाँ प्रभाव है कल्चर का। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर ऑफ सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड एज ए मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, फिश एंड वेजिटेबल। तो यहाँ की जो जमीन है और जो खूब बारिश होती है इसलिए यहाँ चावल की खेती ज़्यादा होती है। यहाँ की क्लाइमेट और जमीन इस तरह से है कि चावल की खेती बहुत अच्छी होती है, उपज बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा लोग, केरल के लोग चावल और मछली और सब्जियाँ खाते हैं। केला भी खूब होता है, नारियल भी खूब होता है। तो अब देखते हैं कि लोग मछली चावल क्यों खाते हैं? क्योंकि वहाँ क्लाइमेट ऐसा है। तो जोग्राफिकल रीजन के चलते उनके खान पान में डाइवर्सिटी आ गई, हिस्टोरिकल फैक्टर के चलते वहाँ रिलीजन में डिफरेंस आ गया। तो किसी भी रीजन का मतलब आपका जो डाइवर्सिटी इंडिया में है उसके पीछे दो फैक्टर, एक हिस्टोरिकल और दूसरा जोग्राफिकल। और इसके लिए हमने दो चीज पढ़ा, एक लद्दाख का पढ़ा और एक केरल का पढ़ा। So lastly, we have come to know that India is the country of diverse culture, religion and language, but even then there is unity in diversity. So diversity should be acknowledged, encouraged and appreciated. Diversity enrich our life, gives an opportunity to enjoy, to celebrate different festivals, to learn different languages and to eat different types of dishes. So diversity in no manner going to hamper and disturb us, but it enrich our lives, and thank God we are the Indian people are having so many diversities in our country, but even then there is unity, and this unity is not
superimposed from outside, but it is within from Indian fold. थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं. व्हाट डज समीर दू सेल? समीर दू सेल क्या बेचता था? न्यूज़पेपर, वेजिटेबल, फ्लावर्स. एग्जैक्टली आपने सही गेस किया, वो न्यूज़पेपर बेचता था. डाइवर्सिटी मींस डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फूड. ऑल ऑफ दिस सही गेस किया आपने. ऑल ऑफ दिस, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फूड, सबको हम डाइवर्सिटी कहेंगे. हु रोट द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी? यू गेस्ड राइटली, इट वाज जवाहरलाल नेहरू. सो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बुक को आप लाइन बाय लाइन पढ़िएगा. So thank you to all of you, and we come to know that India is the country of diversity, but even then there is unity in India, although there is differences in language, culture, religion and festival. People of different culture, religion, food habits, community live here, but all are united with each other, क्योंकि कल्चर से और लैंग्वेज से हमारा दोस्ती में और एकता में बाधा नहीं आती है, जिसके लिए हम लोग कहानी समीर 1 और समीर 2 का पढ़ा. और फिर हम लोगों ने ये भी जाना कि सभी तरह के अंतर को, डिफरेंसेस को डाइवर्सिटी नहीं कहेंगे, कुछ को हम इनइक्वलिटी भी कहते हैं. इनइक्वलिटी का मतलब यू डोंट हैव प्रॉपर अपॉर्चुनिटी एंड रिसोर्स टू लिव अ गुड एंड हेल्दी लाइफ. जैसे समीर 2 में इक्वलिटी थी, और इक्वलिटी का कारण हमारे समाज में कास्ट सिस्टम भी रहा है. सो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू.